ہیلو السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو انکلز ٹاک شو۔ انکل، کافی عرصے سے ہم جو ہے وہ معاشرتی موضوعات کے اوپر کافی جو ہے وہ لب کشائی کر چکے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک طور پہ جائیں گے، ملکی حالات پر، انٹرنیشنل حالات پر۔ ایک مشہور جو ہے وہ مصرع جو ماضی میں بولا گیا تھا، وہ آپ اس کو ایکسپلین بھی کر دیں گے۔ میں اس جملے کو دہراتا ہوں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ڈیفائن کریں، اور ملکی اور انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک حالات کو کس طرح سے آپ اس کا غمازی کرتا ہے یہ مصرع۔ جی ہاں، ٹھیک ہے طاہر فاروقی، بہت کارآمد اور بہت اہم موضوع ہے۔ ملک کی کرنٹ سچویشن پر ہے، ملک کی کے آج کے حالات پر ہے، اور اس کا تعلق 50 سال پہلے پاکستان کے، بلکہ 60 سال پہلے پاکستان کے پرانے حالات سے۔ تو پاکستان کی جو بنیادیں بن رہی تھیں اس زمانے سے اس میں خلا اور دلاڑیں پڑنا شروع ہو گئی۔ اس دور کو میں ایوب خان صاحب کا دور کہوں گا، پریسیڈنٹ ایوب، فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب۔ انہوں نے بہت اچھے لیول پہ کام کیا، فوج سے تھے لیکن فوج میں بھی قابل لوگ۔ ایوب خان نے بہت اچھے لیول پہ کام کیا، لیکن ملک نے اس جیسے وار ہیرو اور جنرل کا بھی ساتھ دیا۔ ایوب خان کی تو وار ہسٹری بھی، برٹش کے زمانے میں ایوب خان ان کے لیے 2 یا 3 محاذ پہ لڑا، اور ان محاذوں کو اس نے فتح کیا۔ تو ایوب کا جو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل ہے وہ آج کے فیلڈ مارشل صاحب سے بہت زیادہ افضل ہے، جو ہمارے عاصم منیر صاحب۔ بہرحال سرسری بولا ہے میں نے اس پہ۔ یہ طاہر صاحب نے شعر پڑھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ ایوب خان صاحب کی گورنمنٹ، میں تو کہوں گا، میں چھوٹا ہوتا تھا اس زمانے میں، اسکول میں ہوتا تھا، چل رہی تھی، ملک کو وہ اچھا چلا رہا تھا، لیکن بڑا بھائی دوسری جماعت میں تھا اور اپوزیشن کا اسمبلی میں لیڈر تھا، حزب اختلاف۔ تو بھائی تھے، سگے بھائی تھے، ان میں وہ پیار بھی تھا، محبت بھی تھی، اور ماں کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ ایوب خان صاحب ایک دن شکایت لے کے پہنچے اپنی ماں کے پاس، دیکھیں اماں، یہ اسمبلی میں مجھے آج کل میرے بڑے بھائی نے زیادہ تنگ کرنا شروع کیا۔ میں جس موضوع پہ بولتا ہوں یا جس موضوع پہ میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں یہ رکھنے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ماں نے فزیکلی اپنے بڑے بیٹے کو ایوب کے سامنے، چھوٹے بیٹے کے سامنے ڈانٹا، بولا دیکھو تم نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ نہیں کیا۔ اور انہوں نے اس کو آنر کیا۔ 2-4 دن اسمبلی کے حالات صحیح رہے، لیکن اس کے بعد ایک ایسا موضوع آیا جس پہ حزب عادت، حزب اختلاف، ایوب کا بڑا بھائی خاموش نہیں بیٹھ سکا، اور وہاں یہ شعر پڑھا گیا۔ ملک کے حالات پہ، ملک کی ستم ظریفی پہ، ملک کے حالات جو بگڑ رہے تھے، جو بگڑنا شروع ہو گئے تھے، ایوب خان کے آخری دور کی بات ہو رہی، تو اس وقت اس نے کہا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ گورنمنٹس کے تمام بیوروکریٹس پر اس کا ٹنس تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، کتنی بڑی پوسٹ کا ہو، کتنا ہی بڑا جنرل ہو، لیکن اس کو اس شعبے کا کام نہیں آتا تھا۔ جس طرح گورنمنٹ اس زمانے میں بھی ڈیوائڈ کی گئی، اور جس طریقے سے لوگوں کو ایک پورٹا فولیو دیے گئے، تو اس نے کہا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہو۔ گلستہ ملک ہو گیا، اور جو ہر شاخ ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، اور الو جو ہے یہ بیوروکریٹ ہے، چیف سیکریٹری ہے یا منسٹر ہے جو بیٹھے۔ تو بڑا خوبصورت شعر ہے، اس وقت کے حالات کی
उसने पूरी अक्कासी की और भाई को खामोश रहना पड़ गया, जो सदर पाकिस्तान था जी कि भाई बड़े भाई ने ऐसी बात कर दी, अब इसका जवाब तो नहीं मिला। बहरहाल ये चपकलिशें चलती नहीं, लेकिन इसको मैं अब आगे कंटिन्यू करूँगा। मुल्क के आपके हालात, अगर आपको मैं मुल्क की हिस्ट्री दे दूँ तो बद से बदतर होते चले गए, और करप्शन जो अगर उस ज़माने में आटे में नमक के बराबर था और बहुत ही जलील और बेज़मीर इंसान करता था, वो खुल के सामने आने लगे। अयूब खान ने भुट्टो साहब जैसे को अपना बेटा बनाया था, वो अयूब को सिर्फ डैडी 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 कहते थे। कैलिफोर्निया से पढ़ के आए थे, बड़ी खूबसूरत अंग्रेज़ी बोलते थे, हैंडसम आदमी थे, सिंध के वडियरे थे। ये सारी चीज़ों ने लीप थोप के भुट्टो साहब की बेइंतहा पुष्ट बनाई की, और सिंध की आवाम भी उसके साथ आई। फिर उसकी तकारीर ने कराची के महाजनों को भी मुतासिर किया। अच्छा भाई किया होगा, हमें कोई एतराज़ थोड़ी है कि भुट्टो साहब की अगर लीडरी चमक गई उस ज़माने में, लेकिन आप में काबिलियत कोई ख़ास नहीं। आप अपनी हुकूमत 5 साल नहीं चला सके और करप्ट डोले को रखा, और फ़ौज के साथ आपने उस बरादरी को कायम किया जिसमें ज़ियाउल हक जैसा खबीस इंसान जो सदर पाकिस्तान रहा, और एहसान फरामोश, और वो बंदा जो मुल्क के काम नहीं आया, जिसने जॉर्डन, जब इसको डेपुटेशन पे जॉर्डन भेजा गया था, ये इतना खसाई था कि इसने जॉर्डन में एक फ़लस्तीनियों के कॉन्फ्लिक्ट में, जो उस वक्त ब्रिगेडियर होता था, इसने 25,000 फ़लस्तीनियों को एक रात में भून दिया था। ये हिस्ट्री है हमारे ज़ियाउल हक साहब। तो इनके बड़े करतूत हैं, और भुट्टो ने कोई बुरा तो इसके साथ नहीं किया, जैसा भी था भुट्टो, लेकिन तू इतना एहसान फरामोश नहीं हो सकता था। ये हमारी फौज का किरदार होता तो बनती ना फौज। ईस्ट पाकिस्तान आपने को 65 में आपने 1 इंच जमीन नहीं ली, आप क्या बात करते हैं कि वी आर द बेस्ट सोल्जर? You have been lying all the time. Soldiers are in Europe, English, French, German, Japan, Korea, US. These are soldiers. These are soldiers. You don't ever compare yourself with these nations. You learn. Stop lying and the false publicity and the false propaganda. Okay, now go ahead. I'm going to give you the history. But Saab was hanged. That was all your politics. That was all your wisdom. A political leader of Bhutto's quality. It was all fake. You did not have your root in the nation and your own intelligence to operate the government. 4 साल में आपका कबाड़ा कर दिया उस बंदे को जिसको आपने ब्रिगेडियर से उठाकर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बना के पाकिस्तान का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया। इतना हराम को और इतना नमक हराम, ऐसे लोगों ने पाकिस्तान को बर्बाद किया। उसके बाद आगे दूसरे सिविल गवर्नमेंट्स आना शुरू हुई। नवाज शरीफ साहब आ गए। शुरू में नहीं होगा इतना करम, बहुत तेज था, बहुत स्मार्ट था, HSN का पढ़ा हुआ है, मामूली कॉलेज नहीं है जहाँ से इमरान खान पढ़ा हुआ है, दोनों क्लास फेलो हैं। तेज था, पंजाब के लिए बहुत काम किया, अपने सूबे में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। गोल्डन हीरो उसको कहा जाता था पंजाब में, नवाज शरीफ। 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा 35-36 साल पहले। उसके बाद दोबारा वज़ीर आज़म बने। लोग बोलते हैं आँखों में धूल झोंकता रहा। नहीं, आपको किसी भी चीज़ हासिल करने के लिए आपके पास कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए। हम इमरान खान साहब की टैलेंट को इनकार नहीं करें। पाकिस्तान को क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में पहली दफ़ा चैम्पियनशिप इमरान खान ने जीता। लीडरशिप तो है उसमें, लेकिन उसका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बेइंतहा ख़राब था। और जो टोला इसके करीब आया, उसका सबसे ज़्यादा किरदार है इमरान खान को गर्क करने में।
उसमें फ़ौज भी शामिल है। फ़ौज ने आपको लीडर के तौर पे नहीं देखा, आपको अपने एजेंट के तौर पे देखा, आपको डबल क्रॉस कर दिया। पहले आपको लेकर आए, ज़्यादा आपको निकाल के मक्खी की तरह दूर कर दिया। आपकी अपनी ताकत नहीं बनी, आपने अपना कोई रूट नहीं बनाया मुल्क में, कोई पब्लिक नहीं बनाई उस लेवल की जो आपके लिए आज खड़ी हो जाती, जेलें तोड़ देती और इमरान खान को कंधों पे बैठा के फरार करा देती। तो आपकी ताकत कहाँ गई? मैं बार बार कह रहा हूँ पाकिस्तानी कौम के बारे में, इट्स अ डेड नेशन। ऐसी कौमों को तो डेड नेशन कहते हैं। तो इमरान खान अगर आपको अजीज़ है, आपका लीडर है और आप समझते हैं कि एक बेहतरीन लीडर है कौम के लिए, तो उसको जेल की बाहर और लोहे की सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए। अलावा इसके ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इंसानियत की बुनियाद पर, भाई इस मुल्क में करप्शन किसने नहीं की? आपने आए बादशाह उल्टे सीधे केसेस बना के उसको सबके साथ मिला के उसी कीचड़ में घसीट लिया, उसी खिलाफत में घसीट लिया। अगर उसने नहीं करप्शन किया, उसके लोगों ने ज़्यादा करप्शन किया, जिम्मेदार तो है क्योंकि सीट पे वो बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, उसको हर चीज़ वॉच करनी थी। वो गलत इन्फ्लुएंस थे, गलत लोग जो उसके सिस्टम में फिल्टर कर गए थे, उसने इसको बर्बाद कर दिया और फौज से इसकी रख दबती थी। ये बोलते हैं इनके इसके है हम ही लोग के बड़ा दबंगे मेरे ख्याल में तो नहीं। बाजवा साहब को इसको फायर करना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है मुल्क का, टॉप ऑफ द पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। आपने उस पावर को इमरान खान साहब क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इसमें मैं नवाज शरीफ का रेफरेंस दूंगा। नवाज शरीफ इस हिसाब से इमरान से बहुत आगे, उन्होंने 2 दफ़ा नहीं सोचा, अपनी कैबिनेट से मशवरा नहीं दिया, किसी से नहीं लिया, बोला मैंने फैसला किया, मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर, मैंने मुशर्रफ को फायर कर दिया। फैसलों की ये ताकत होती है। कायदे आज़म ने कहा अगर आपका फैसला गलत भी हो जाए लेकिन फैसला हमेशा सही होगा क्योंकि आप फैसला करने के आदी हैं। वहाँ हमारे इमरान खान साहब फेल हो गए। ये फैसला उसकी ज़िंदगी का ग्लोरियस और हीरोइज्म का फैसला था, उसको ये नहीं कर सकता, जिसका मुझे ज़ाती तौर पे अफसोस है। मैं इमरान खान के हामी नहीं हूँ लेकिन मुझे अफसोस है। बीइंग ए पॉलिटिशियन, बीइंग ए नेशनल लीडर, इसको वो फैसला करना चाहिए था। बाजवा को उड़ा के फेंक देता, फायर कर देता, देखता क्या होता, सारा रिस्क खेलता। फिर भी तो तुझे बुरी तरीके से तुझे हरा के असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो एक इंसल्ट होती है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, लीगली आपको डॉक्यूमेंट बना के वजारत से बाहर कर, आप इसका इंतजार कर रहे थे। आपने तोड़ जोड़ क्यों नहीं? एमक्यूएम से क्यों नहीं मुलाकात? दूसरी पार्टियों से क्यों नहीं? 10-12 वोट तोड़ लेते, आज आप हुकूमत कर रहे हो। यार तुम किस लेवल के लीडर हो, तो तुमसे क्या उम्मीद रखी है? बहरहाल हामी हूँ कि आपको अल्लाह ताला इज्जत दे, आपकी फैमिली को अच्छा रखे। मेरा आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है इमरान खान साहब, और कोशिश ये होगी कि अल्लाह ताला आपको रिहा करे। आपके अवाम में तुम्हें ये ताकत नहीं देख रहा, और आपके ये जो जियाले हैं इनमें भी नहीं थे। पीपल्स पार्टी का लफ्ज़ है जियाले, लेकिन ये आपके जो लोग हैं, जो आपका नारा था किसी चीज़ की परवाह नहीं करना, ये हर चीज़ की परवाह करते। ये एक दिन आपके लिए रोड पे आके नहीं लेटे और ट्रैफिक जाम नहीं किया। आज से 100 साल पहले की मिसाल दे रहा हूँ। गांधी ने इंडिया का पूरा सिस्टम ब्रिटिश के खिलाफ जाम करा दिया था। लोगों ने कहा था आपने लड़ना नहीं, ट्रेनों के सामने लेट जाना। वो शांति उस लीडर की, लोग उसकी बात सुन के हिंदू क्या मुसलमान क्या सब ट्रेनों के सामने लेट। वो लीडरशिप तो नहीं देखने में आई पाकिस्तान में। अनलियाकत अली खान थे, उनको गोली मार दी। अब उसके बाद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने करप्शन शुरू किया, तबाहकुन करप्शन शुरू किया, पाकिस्तान को खाली करना शुरू किया। यार तुम्हें हम एडमायर करते हैं, इंटेलिजेंट आदमी, 3 दफ़ा तुम इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने,
तुम्हारा भाई प्राइम मिनिस्टर बना, तुम्हारी बेटी इस वक्त वज़ीर आज़म है, चले काम भी अच्छा कर रही है, यंग है, औरत है, औरत ज़ात है, पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आई है, हमें उसको मौका देना चाहिए। ठीक है, चाचा साथ बैठा हुआ है, उसका तजर्बा उसके काम आ सकता है, क्योंकि शहबाज शरीफ भी बहुत कामयाब वज़ीर दाखिला रहा है पंजाब का, बहुत कामयाब। तो उन्होंने अपने प्रोविंस के लिए काम किया, ठीक है, दूसरे प्रोविंस के साथ जाती की, बेईमानी की, मैं तो कहूँगा बेईमानी। आज पंजाब के लोगों को बलूचिस्तान में गोली मारी जा रही है, उनका आईडी चेक किया जाता है। आपने अपने अमल से खुद नफरत फैलाई, वही नफरत आपने ईस्ट पाकिस्तान में फैलाई। ईस्ट पाकिस्तान ने आपको, ईस्ट पाकिस्तान को आपने कॉलोनी बनाया था, है 2 रुपए की जो बनियान बिकती थी, जो बंगाली पहनता बड़े शौक से मछली पकड़ने के लिए और अपनी बोट दरिया चलाने के लिए, क्योंकि वहाँ समंदर और कश्तियों पर और नहरों पर और दरियाओं पर उस मुल्क का रवाज है सफ़र करना, तो बनियान पहनते हैं और लुंगी पहनते हैं। तो आपने वो 2-2 रुपये 1.5 रुपये जिसकी कॉस्ट थी, वह 15-15 रुपये उस ज़माने में आपने बेचना शुरू किया। शर्म आती है आपको, है? आप फौज से थे, ब्यूरोक्रेट से थे, जहाँ से भी थे, करप्शन तुम्हारे रग रग में घुसा हुआ है। हाँ, और दीन का फॉलो करेगा, हाँ? कुत्ते की तरह चला जाता है किसी की नमाज जहाँ पर। तेरा दिमाग है, तेरा दीन है, हाँ? अल्लाह की तरफ तू रुजू है, अल्लाह की तरफ तू जाके दीन करके क्या सिखाता है कि तूने झूठ नहीं बोलना, करप्शन नहीं करनी, एक पैसा हराम का नहीं खाना, गरीब लोगों की मदद करनी, जो गिरा हुआ उसको उठा के खड़ा करना, जिसके पास तालीम नहीं उसको तालीम देनी, जो बच्ची बीमार है उसकी आपने शिफा के लिए हॉस्पिटल खोलने, उसके लिए मेडिसिन देनी, उनको वजीफे देने। ये तुम क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे दिल में लोगों का दर्द है। लोग आज टैंकर माफिया और ये डंपर्स, इतने ऊंचा बैठा हुआ ड्राइवर, उसका भी सारा कसूर नहीं है। तुमने उसको अलाउ क्यों किया इन रोडों पे? सर्कुलर क्यों नहीं बनाया? सर्कुलर पूरे शहर के तरफ जिसमें डंपर चलेगा, मेट्रो की तरह डंपर की एक अपनी लाइन होगी। आज आपके ये सारे एक्सीडेंट बच जाते। मोटरसाइकिल्स के आप ट्रैक बना देते, आज आपके ये सारे एक्सीडेंट बच जाते। यार तुमने 2 पैरों पे और इस पैक पे पेट जिसकी तुम्हें हाँ लगी हुई है कि खाना मिल जाए, खाना मिल जाए, है कोई घड़ी पसंद आई वो मिल जाए, है कोई बाइक नहीं नजर आई वो मिल जाए। बहरहाल ये कोई एरिया होता है जिस पे आप रहेंगे? महलों का हाल देंगे, सड़ी हुई गली है, गटर उबले हुए, बदबू आ रही है, पड़ोसी से बात नहीं करना, भाई से बात नहीं करना, एक गुरेज आलम है, एक बेवफाई की लहर है, एक बेवफाई की एक शहर फैला हुआ है कि कोई किसी का नहीं। यार तुम इस हालत में पाकिस्तान बनाओगे, हैं? और ये जो पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बाहर से पढ़ के आए, बिलावल भुट्टो साहब जैसे, और दूसरे और तीसरे और चौथे, इनका क्या बने? ये क्या कर रहे हैं? ये सब छक मार रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में करप्शन जैसी चीज ने अजदहे की तरह इनकी ऑक्सीजन को हड़प कर, सक कर, अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल, सक, सक्शन, ठीक है? तो इनके भेजे से कौम की इस्लाह के लिए क्या निकले? कौम का दर्द आप कैसा महसूस करें? कभी आके बस में सफ़र कर, कभी आके किसी बाइक पे बैठ के जा बाइकिंग के साथ, कभी आके ट्रेन में सफ़र कर 3rd क्लास में। क्यों? तुझे आसमान से भेजे हरामखोर, फिर तेरे बाप का किरदार, सरदारी साहब हॉलैंड में बिलावल सुन, तेरे बाप के बारे में करप्शन, तेरे बाप के करप्शन के बारे में किताब छापी गई और हॉलैंड के स्कूलों में नसाब का हिस्सा है कि आपने इस जैसे मिस्टर 10% का खिताब दिया उन्होंने सरदारी को, तेरे बाप। ऐसा नहीं होना चाहिए, है? फिर तेरे माँ का कत्ल हो जाता है कि तुम अपने मुल्क की तारीख
اتنے زیادہ خون سے اپنے لوگوں کے خون سے کیوں رہ رہے؟ میری ماں تھی، اب میں آج بھی افسوس ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، ذہین عورت تھی، لیکن یہ کیا ہے؟ پھر تیرے ماما کا قتل ہو جاتا ہے، بھائی کیا حالت ہے؟ مرتضیٰ کا قتل ہو جاتا، عبداللہ ہارون یہ کیا ہے بھائی؟ مافیا ہے، فوج آپ کی مافیا ہے، پولیس آپ کی مافیا ہے، ہر صحیح بولنے والے کا آپ گلا دبائیں گے، اس کو گولی ماریں گے، اس کو لگا کے اس کے ساتھ چھتر بازی کریں گے، اس کی بے عزتی کریں گے۔ کتوں سے بدتر تمہارا مزاج ہے، لباس پہن کے انسان نظر آتے ہو لیکن اندر سے تمہارے بدبو آ رہی ہے، تمہاری روح ختم ہو گئی۔ شرم کرو، آج بھی شرم کرو، اور دین کو آپ نے آج سے فالو کرنا ہے۔ یہ پیغام اللہ کے رسول کا اور تمام پیغمبروں کا آج آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور جتنا میرے دل میں جذبہ اور خون اور عزت ہے ایک اچھے عمل کی، اس نیت سے آپ کو پہنچا۔ زندگی بدلو، یہ مت دیکھو کون کہ، ٹھیک ہے میں ایک عام سا بندہ ہوں، یوٹیوبر ہوں، یوٹیوب پہ بولتا ہوں، اصلاح کا بھی مجھے شوق نہیں ہے، میری اپنی اصلاح ہو جائے نا وہ کافی ہے معاشرے میں، ٹھیک ہے بھائی صاحب، لیکن میں انشاءاللہ بولتا رہوں گا۔ باز آ جائیں ان خباثتوں سے، کیوں بسے دو پاکستان کو غرق کرنے کو۔ آج کل آزادی کا دن، وعدہ کرو اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے، میرے پیارے حضرت عیسیٰ سے جنہوں نے کام کیا اس دنیا میں، پیارے حضرت موسیٰ سے، حضرت آدم سے، حضرت حوا سے، حضرت مریم سے، حضرت خدیجہ سے، اور جتنی عظیم عورتیں، جتنی عظیم مائیں، سب کی دعائیں لو۔ شرم آتی ہے؟ کیوں تم نے فیصلہ کیا حرام کھانے کا؟ حرام کھانے کے والوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہاری نسلوں کو تباہ کیا، اور جھوٹوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں تم پہ اللہ کی لعنت، تم ان دو اپاہج پیروں پہ چل رہے ہو، جھوٹ اور حرام کھانا اور رشوت، لعنت ہے آپ کی زندگی پر۔ میں بول رہا ہوں پاکستان زندہ باد، پاکستان رہے گا، بنے گا، نئے لوگوں کے ساتھ بنے گا، اور اگر سول وار کرنا پڑ گئی پاکستان تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائے، آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اس طرح ملک بنانے کے لیے تھی، اب ملک کو صحیح کرنے کے لیے، اب آج ملک کو کھڑا کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ قربانی دینی۔ خدا حافظ پاکستان، پاکستان زندہ باد۔